Assalamu alaikum. My name is Adnan Choktai and I am a lecturer at Times Institute Multan. I've been teaching since last 10 years. I teach in more often programs and more often I teach the management sciences subjects or different subjects. Today I'm teaching the topic decentralization. So what is the decentralization and what is centralization? The simple concept of decentralization is what? Centralization is centralization means authority to make important decisions at which is retained at top level management. I mean कि जो भी डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट लेती है और वो बाख्तियार होती है उसको लेने में, तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन. Now come to decentralization. What is decentralization? The process in which powers are delegated to the subgroups which are authorized to make their own decisions and plan accordingly. Now I can explain it more easily. The process in which the activities of an organization regarding planning, decision making and others which are delegated from top management to the lower level management, to the senior managers, and who are authorized to make their own decisions. कि जैसा ये है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन की है, आपने उसमें ये डिसाइड किया कि जी आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ गोइंग टू मेक डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट ऑल द स्ट्रैटेजीज. तो दिस इज़ अ सेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट. नाउ if I make a SOP of the company that I am the owner of the company, but I am delegated my authorities to my sub-managers who can perform on my behalf and prepare strategies and make decisions according to the situations in which they are working. So I had delegated my authorities to that manager, and that manager is responsible for making his own planning and decisions. This is a decentralization concept. Now more elaborately, centralization, the process of transferring and assigning decision making authority to high level management of an organization or hierarchy. Means a decision is made at the top of level of the management. कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं और आपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसने एक डिसीजन लिया है. अब वो डिसीजन जो है वो इम्प्लीमेंट करना है एट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट डिसीजन इज फॉलोड एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द डिसीजन अबाउट प्लानिंग, restructuring, change and anything. It means that the chain of command is with the top management, and knowledge, ideas, information are seized down to the organization. And that means that knowledge and information which is transferred to the lower level management is from the high level management. And span of control means control of the organization or control of the chain of command is with the top level management. Now come to decentralization. Decentralization, the process of transferring and assigning decision making authority to the lower level of our organization hierarchy. It means you have transferred your decision making powers to authority to your lower level managers. Knowledge, ideas, information are flowing from bottom to top of the organization. It means the person which you have authorized to work on your behalf is taking the information from grassroots and transferring that information to the top management, and top management guide the middle management to act accordingly. Span of control is relatively small. It means the top management have delegated part to middle management. Now middle manager is authorized to look all the matters and report it to the higher level management. Now you can see the centralization concept. Centralization, span of control is one person, means a span of control is rigid. It is not transferred to the other manager. While in the decentralization, you can see the span of control is shifted to sub managers, middle managers, who act
as a managers to perform their task and make decision and strategy according to their own working environment or their own emerging scenarios. Centralization is the centralization process is always followed where organization or management want a rigid control. When management want to control, have a whole control, they can shift to centralized structure. When organization is in crisis, the top management think that they have to take all the powers from sub managers. That is also a centralization process. Centralization leads to consistency. Rather, decentralization is desire for empowerment, desire for more complexity, size, diversity, all falls in decentralization. Why? Now concept is कि why decentralization? हमें decentralization क्यों बेहतर लगती है या decentralization में हमें क्यों जाना है? Why decentralization? Now, decentralization always encourage development of professional managers. Obviously, जब हम डिसेंट्रलाइजेशन में जाते हैं और हम मैनेजर्स को एम्पावर करते हैं कि डिसीजन मेकिंग करें, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको देख रहे हैं और वो उसको खुद जिम्मेदारी से उसका वो कर रहे हैं, यानी कि वो दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, दे आर प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोज दे फेस्ड. Secondly, managers are able to exercise more autonomy, but it can lead to competitive environment. When managers are autonomous, obviously, in the last slide you have seen that they are sub-managers, they are authorized to work. It always creates the sense of competitiveness कि एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश करते हैं, outrightly परफॉर्म करते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकें और बाकी चीज़ों को कर सकें. ठीक है. Now come to next slide. Why centralization authority? Why we need for a centralization concept? When managers are not skillful, when our top management thinks that there is an incompetitive management which cannot leads to perform, then they adopt centralized concept. When managers are not skilled enough and would not further trainings which can be expensive. When management think कि जी हमें अपने एम्प्लॉयज़ को एक हद तक ट्रेन करना चाहिए, उन्हें अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहिए, उनसे अपने मुताबिक काम लेना चाहिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं. जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें जब हम जाते हैं, हम लोगों को ट्रेन करते हैं, उनकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स होती हैं, डेफिनेटली उनकी स्किल पॉलिश करने होते हैं सो दैट दे परफॉर्म अकॉर्डिंगली. हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ता है, हमें उन्हें ओरिएंटेशन उनकी अच्छी करनी पड़ती है, तो दैट इज़ अ कॉस्टली एक्सपेंसिव प्रोसेस. Some few arguments for decentralization. Top management can become overburdened. कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों होती है कि जी जब टॉप मैनेजमेंट बहुत ऑक्यूपाइड होती है या टॉप मैनेजमेंट ने कोई नई एक्सटेंशन या एक्सपेंशन के या और पॉलिसी मेकिंग करनी होती है, तो वहाँ वो इतने ओवरकम होते हैं कि वो नीचे अपनी ऑटोनमस बॉडीज़ पे या अपने उस पर नीचे लोअर लेवल पे काम नहीं कर पाते. सो दे नीड अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. लाइक अ गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो हाईली सेंट्रलाइज होता है, लेकिन जो अब आप ये देखें कि जब आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उसने अपनी डेलीगेट की गवर्नर को, उसके बाद आपकी जो आपका सीएम है, आपका प्रोविंशियल सीएम है, उसने अपनी डेलीगेट कर दी, उसके पास आई पावर्स, उसने उसको चलाना है, रन करना है, उसने अपनी टीम बिल्डिंग करनी है. तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स वही हैं जो हमारे जो हाउस ऑफ कैमरल जो हमारा अपर बॉडी कर रही है, बट उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है उसी की ऑर्डर्स पे, लेकिन सिनेरियोज के हिसाब से. तो दिस इज़ अ सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर कि हमारा सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है लेकिन हमने उसे किसी हद तक डिसेंट्रलाइज कर दिया कि जहाँ पे वो अपने मुताबिक डिसीजन लेके थोड़ा सा उसको चला सकते हैं और छोटे छोटे डिसीजंस के लिए उन्हें वापस रिस्पॉन्ड नहीं करना पड़ता. बट दे आर फॉलोइंग द कोर पॉलिसीज विच आर फॉर्म्ड एट द टॉप लेवल लाइक गवर्नमेंट. फ्यू एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन. Why centralization is good? It is cost efficient. Obviously, when there is no training programs, no extensive trainings, no extra highly paid employees, it is a cost effective. Better command, yes, it is a better command product. You have the whole command on the organization.
इट ऑलवेज एनहांस वर्क क्वालिटी। जॉब इनसिक्योरिटी होती है कि जी वो अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो मैं आउटरेटेडली मेरे लिए मसला हो जाएगा। एक्शन यूनिफॉर्म होते हैं बिकॉज पॉलिसी इज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप लेवल विच हैज़ टू बी फॉलोड एट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो यूनिफॉर्मिटी एक्शंस में होती है, वहाँ पे ये नहीं होता कि अगर वो इस तरह है तो मैं इसको अपने तरीके से करूँ, उसको जो तरीका बताया जाता है उसने उसको उसी तरीके से ऑप्ट करना पड़ता है। Focus on the vision, yes, also a main advantage. When you have a clear-cut focus on your vision, vision is what your purpose of the organization, and you are making goals to achieve that vision of the organization. You have a complete vision, a straight vision to your objectives. Proper coordination, yes, there is a proper coordination in centralization concept. नाउ अब हम ये सोचते हैं कि अगर हम सेंट्रलाइजेशन के इतने फ़वाइद हैं एंड सेंट्रलाइजेशन इज़ वेरी बेनिफिशियल, व्हाई वी नीड फॉर अ डिसेंट्रलाइजेशन if all the things are in the advantage of centralization like this, कि जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, आपके पास कमांड भी अच्छी है, आपका वर्क क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है, आपके एक्शन यूनिफॉर्म है, आपका विजन फोकस्ड है, आपकी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, स्मूथ है, देन वाई हम क्यों डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन की बात क्यों करते हैं? क्या रीज़न है कि वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? यस, centralization slows down the operation. Obviously, when chain of command is with the high level of organization at the top management, most of the time they are very occupied for the petty issues which need to be addressed at the stage when they occur. So when issues, जब उनके पास issues उस वक्त पहुंचते हैं जब उस वक्त देर हो सकती है, तो वो ऑपरेशंस को स्लो कर सकता है। यानी कि जी आपकी प्रोडक्शन चल रही है या आपका कोई काम चल रहा है, वहाँ फॉल्ट आया, वहाँ पे इमीडिएट डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, हम ये लिख देते हैं, हमें जवाब आएगा तो हम उसके मुताबिक कर लेंगे, आपका वो काम रुक गया। तो सेंट्रलाइजेशन का एक बहुत बड़ा डीमेरिट है कि ये जो है ऑपरेशंस को, आपके टास्क को स्लो डाउन करता है। नंबर 2, डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली कि जहाँ आपको मौके पे डिसीजन मेकिंग रैपिड की ज़रूरत थी, वहाँ आपका डिसीजन लेट आता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का ये फ़ायदा है कि आपके पास एट द स्पॉट डिसीजन मेकिंग का जो है वो चांस होता है और आप उसको डिसीजन लेकर अपनी प्रॉब्लम और चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। जबकि सेंट्रलाइजेशन में अगर हम जाते हैं तो वहाँ डिलेज इन डिसीजन मेकिंग है। देन स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन, यस, when there is a centralized setup, you have a close competitive advantage. You cannot polish your skills, you cannot specialize in your field. So in decentralization you have lots of chances to groom yourself through massive trainings, through competitive environments and etc. Now एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सेंट्रलाइज सेटअप में। देयर इज़ अ मेन प्रॉब्लम इन सेंट्रलाइज सेटअप दैट दे आर लीस्ट बॉदर्ड फॉर द चेंज, कि वो चेंज को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करते। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि दे आर वेरी, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है दे आर वेरी एग्रेसिव टू एक्सेप्ट चेंज। यानी कोई नया कल्चर अडॉप्ट करना हो, कोई नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी हो, तो दे आर वेरी एग्रेसिव एंड दे आर वेरी रिलक्टेंट टू अडॉप्ट द चेंज। वाइल इन सेंट्रलाइज सेटअप इट इज़ वेरी टफ टू चेंज द सेटअप, टू इम्प्लीमेंट न्यू थिंग्स। सो सेंट्रलाइजेशन की एक बहुत बड़ा डीमेरिट है कि ये जो है एडेप्टेबिलिटी ऑफ चेंज जो है इसमें ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। जैसे कि स्पैन ऑफ कंट्रोल विद हाई लेवल, सेंट्रलाइजेशन के अंदर आप ओवरबर्डन होती है टॉप मैनेजमेंट के, उनके पास बहुत सारे डिसीजंस आ रहे होते हैं और ओपन डेंसी चल रही होती है, वो एवेल्यूएट कर रहे होते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको पहले लिया जाए, किसी को डेफर किया जाए, तो कुछ चीज़ें उसकी वजह से ऑपरेशंस और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन द सेंट्रलाइजेशन में। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप होती है सेंट्रलाइजेशन में और पुअर अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि जब आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टॉप टू बॉटम है, सेंट्रलाइज सेटअप में ये होता है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आपने उस पर अपनी राय नहीं देनी होती। यू आर not authorized to say or to make or to comment on that policies, आपने सिर्फ उस पॉलिसी को फॉलो करना था। बल्कि जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके पास एक्सचेंज ऑफ वर्ड हो सकता है।
हो सकता है कि जो पॉलिसी आप बनाना चाह रहे हो आपका मैनेजर उसमें को ऐड करके कुछ उसमें रेक्टिफिकेशन करके उसकी बेहतर चीज़ दी जा सके उसमें। उसमें जो डिसेंट्रलाइजेशन सेटअप है वो 2 वे प्रोसेस है, सेंट्रलाइजेशन इज़ अ 1 वे प्रोसेस। नाउ few advantages of decentralization. It is a democratic participation. Yes, I have told you before that it is a 2-way communication process. So you can debate, you can exchange your words, you can give ideas, you can discuss on the matters. You can improve your management by training skills, by managing, adopting new things. Decentralization में आपको जब आप चेंजेस अडॉप्ट करते हैं या आप डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में जाते हैं या जब आप उसको फोकस करते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपकी इम्प्रूव होती हैं, आपके स्किल्स इम्प्रूव होते हैं, आपकी मैनेजमेंट इम्प्रूव होती हैं, आपकी रिप्रेजेंटेशन स्किल्स इम्प्रूव होते हैं, आप अपनी रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसको बॉटम में ये नहीं पता होता कि कौन सी रिसोर्सेज जो हैं हमारी बेहतर होती हैं, उसको शिफ्ट करने के लिए उनको बहुत टाइम चाहिए उसको रिव्यू करने के लिए। जो वहाँ पे उन्होंने डिसेंट्रलाइज करते हैं अपनी अथॉरिटीज़ को, तो जो वहाँ पे बंदा बैठा है ही इज़ वेल अवेयर ऑफ हिज सेक्टर। जैसे कि अब आप ये देखें कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उन्होंने हर जगह पे हर कंट्री में उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया हुआ जहाँ उनके मैनेजर्स आकर बैठते हैं। कोर पॉलिसीज़ कंपनी की ही होती हैं बट वो अपने रीजन के हिसाब से पॉलिसीज़ डेवलप करते हैं क्योंकि उनको पता है उनका लोकल रिसोर्स क्या है, उनकी लोकल मार्केट क्या है, उनका लोकल सिनेरियो क्या है। अब जो टॉप मैनेजमेंट बैठी है वो तो नहीं आएगी देखने, वो तो नहीं स्टडी करने आएगी। जो उनके करस्पॉन्डेंट्स उन्होंने अपनी पावर डेलीगेट की होती है डिसेंट्रलाइज सेटअप के अंदर, तो वहाँ जो उनके मैनेजर्स होते हैं या जो उनके नुमाइंदे होते हैं वो उन्हें कम्युनिकेट करते हैं कि जी हमें इसको हम ठीक है, हम इन्हीं पॉलिसीज़ कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है या कंपनी की रनिंग है या व्हाटसोएवर योर रीजन इज़, हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे रीजन के इसकी पॉलिसी इसको चलाने का ये तरीक़ाकार हो सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन का एक और बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है कि व्हेन नाउ देयर आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन के बहुत बेनिफिट हैं। यस, दे आर वेरी बेनिफिशियल बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में आप देखते हैं कि इट इज़ अ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। येस, इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट कि जी इसमें जो सेंट्रलाइजेशन है इज़ अ 1 वे प्रोसेस एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज़ अ 2 वे प्रोसेस। तो इसलिए इसमें हम कहते हैं कि इट इज़ अ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन द डिसेंट्रलाइजेशन कि यू आर फ्री टू एक्सप्रेस, यू आर फ्री टू डिस्कस, यू आर फ्री टू express, to comment on or to make policies or to make decisions. So it is a democratic participation in the decentralization. Another main advantage is improved management. Yes, कि जब आप अपने ग्रास रूट लेवल पे पॉलिसी मेकिंग करके उसको प्रॉब्लम्स को या ग्रीवियंसेस को एड्रेस कर रहे होंगे और चीज़ों को हैंडल कर रहे होंगे तो यू आर इम्प्रूविंग द थिंग्स। सो वी कैन से दैट इन डिसेंट्रलाइजेशन we have a very improved management. One more benefit of decentralization is that it penetrates national policies to the remote areas. जैसे कि आप देखते हैं कि जी आपकी जो पॉलिसीज़ हैं हमारे, अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट लेवल पॉलिसीज़ जो हैं हमारे पार्लियामेंट में फॉर्मुलेट की जाती हैं। तो हेड ऑफ जो हमारा पार्लियामेंट का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो ये सारी वहाँ से अप्रूव होकर आती हैं। जब ये पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट हो जाती हैं तो वो तो नहीं आते ना ग्रास रूट लेवल पे पॉलिसीज़ को अपनी पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने या उनको एड्रेस करने। तो डेफिनेटली उन्होंने अपने आप को डिसेंट्रलाइज सेटअप में थोड़ा सा मिक्स करके रखा हुआ है कि उन्होंने डिसेंट्रलाइज की हैं, अपनी अथॉरिटीज़ जो है डेलीगेट की हैं टू प्रोविंस, एंड प्रोविंस में जो प्रोविंस का है उससे उनके लोअर लेवल पे जो एरिया वाइज उन्होंने उसको फॉर्मुलेट किया है। तो अब अगर हम देखा जाए तो जो पहले जो पॉलिसीज़ हैं जो वहाँ पे हमारे जो अपर लैपटॉप मैनेजमेंट पे बनी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए और एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे ग्रास रूट लेवल पर हो और उसको इम्प्लीमेंट करे और उसकी जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं, उसकी जो हिंड्रेंसेस हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको एड्रेस करे। तो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस की एक ये बहुत बड़ी ब्यूटी है कि आपकी जो टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको ग्रास रूट लेवल पे एड्रेस कर देता है, प्रमोट कर देता है और उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उसको वो वहीं पे उनके ग्रीवियंसेस को एड्रेस करके उसको जो है क्लियर करा जाता है। ठीक है,
ये डिसेंट्रलाइजेशन में अंदर आप डेफिनेटली इफ़ यू आर हैंडलिंग द थिंग्स, यू आर मेकिंग डिसीजन, यू आर रेक्टिफाइंग द प्रॉब्लम्स, यू आर एड्रेसिंग द ग्रीवियंसेस, इट मीन्स यू आर हाईली स्किलफुल एंड यू आर पॉलिशिंग योर सेल्फ। तो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस का एक और बहुत बड़ा जो एज है वो ये है कि आप इससे अपने आप को, अपनी लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ को ग्रूम कर सकते हैं, अपने स्किल्स को बहुत डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी लोकल यूटिलाइजेशन को, रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, वो क्या करती हैं कि उनकी मेन पॉलिसीज़ तो एक ही हैं, लेकिन वो हर रीजन में, हर कंट्री में, हर रीजन में अपने बंदे अपॉइंट करती हैं। वो उनको इख्तियार देती हैं कि जी वो आप अपना वहाँ पे काम करें। पर्पज़ ये है हमारी गोल अचीवमेंट, हमारा हमने जो सोचा है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, हमारा नेम है, हमारा एक ब्रांड नेम है, ब्रांड इमेज है, जो भी व्हाट्स एवर द कंपनी विजन इज़, उसको वो सपोर्ट करें पॉलिसीज़। सो वो अपने मैनेजर्स को अपनी पॉलिसीज़ भिजवाते हैं। अब वो मैनेजर्स क्या करते हैं, अब हर एरिया में एरिया वाइज उसको वो डिस्कस करते हैं, उस एरिया की जो भी आपके डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, उसके सोशल फैक्टर्स होते हैं, उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके हिसाब से उसको रीडिज़ाइन करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब ये भी होता है कि बहुत सारी रिसोर्स आपकी लो लेवल मैनेजमेंट पे होती है, जिसका टॉप मैनेजमेंट को पता ही नहीं होता। सो अपनी पावर्स को डेलीगेट डिसेंट्रलाइज करने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो लोकल रिसोर्स होती है, जो आपके लोकल क्लस्टर्स होते हैं, जो आपके लोकल फोकस ग्रुप्स होते हैं, जो आपकी लोकल टीम्स होती हैं, कम्युनिटी कॉर्प्स होते हैं, आप उनके थ्रू बेहतर पेनिट्रेट कर सकते हैं, उस रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब जो टॉप मैनेजमेंट में बैठा है उसको तो नहीं पता आपके कम्युनिटी कॉर्प्स में, आपके पास कम्युनिटी कॉर्प्स नहीं है और किस किस कम्युनिटी में अवेलेबल है। हाँ, उसको ये तो पता है कि मेरा इस एरिया में इतना पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को कैसे आइडेंटिफाई करेगा? उस पोटेंशियल के लिए चाहिए कि एक बंदा यहाँ पे हो, लोगों को सुने, पॉलिसीज़ अप्लाई करे, उनके ग्रीवियंसेस को एड्रेस करे और उनसे काम लें। तो लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा इफेक्टिवली हो सकती है। फिर सोशल सर्विसेज में बहुत हेल्पफुल हो सकता है डिसेंट्रलाइजेशन, बिकॉज आप जब एक चीज़ को उसकी जगह पे, ग्रास रूट लेवल पे आके उसकी जगह पे खड़े होकर एड्रेस करेंगे, समझाएंगे, पेनिट्रेट करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो डेफिनेटली जो है वो प्रोसेस जो है वो बहुत स्मूथ हो जाता है, उसमें बाइसेस रिमूव हो जाते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन की ये ब्यूटी है कि वो आपकी जो प्रोसेस है उसको स्मूथ कर सकता है और आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी एक्सपैंड कर सकता है। अब एक डिसेंट्रलाइजेशन के अगर हम देखें, एक पैराडाइम सा बना हुआ एक इमेज है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्लोजर लिंक्स विद पीपल। जो मैं आपसे इंटरेक्शन की बात कर रहा था कि इन द डिसेंट्रलाइजेशन यू हैव अ बेटर नो हाउ ऑफ द ग्रास रूट लेवल। आपको कम्युनिटी कॉप्स में आपको अपने लोकल रिसोर्स का पता होता है, क्लोजर लिंक विद पीपल, डेमोक्रेटाइजेशन पार्टिसिपेंट। ये जब आप उनसे मिलेंगे, आपको उन्होंने डेलीगेट किया हुआ है, आप टू वे प्रोसेस है कि बात सुनेंगे भी और बताएंगे भी, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा प्रेफर होगी। तो ये एक इसकी डायग्राम बनी हुई है जिसमें से आप देख सकते हैं कि ये क्या है। जब अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो डिसेंट्रलाइज करते हैं अपनी चीज़ों को, उनके करस्पॉन्डेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लोकल ऑटोनोमस बॉडी की अकाउंटेबिलिटीज़ होती हैं, डिपार्टमेंट्स की अकाउंटेबिलिटीज़ होती हैं, ट्रांसपेरेंसी क्लियर होती है, सर्विसेज को बेटर करते हैं। आप हर डिपार्टमेंट का जो करस्पॉन्डेंट है, वो इंचार्ज है, उसको आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप फिर ये देखें कि कॉस्ट भी रिकवर कर रहे होते हैं, वो अपनी जनरेशन कर रहे होते हैं और लेस कॉस्ट टू गवर्नमेंट जा रही होती है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का एक पैराडाइम है जो एक स्मिथ ने 2001 में हमें वो जो है बनाया था, डिज़ाइन किया था और उसको उसने अप्लाई किया था और उसने जस्टिफाई किया था कि बाकी डिसेंट्रलाइजेशन का ये बेनिफिट है। तो डेफिनेटली हम अगर ये देखें कि डिसेंट्रलाइजेशन हमने पढ़ लिया है कि डिसेंट्रलाइजेशन की ये बेनिफिट है, डिसेंट्रलाइजेशन पर्पस क्या है, व्हाई वी नीड अ डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस, कि डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब हम ये देखते हैं कि जी एक बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत हाईली सेंट्रलाइज सेटअप है, हर चीज़ है, लेकिन फेलियर्स आ रहे हैं उसमें, उन काम नहीं कर पा रहे या पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, अपनी पॉलिसीज़ को एफिशिएंटली डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पे एक डिसेंट्रलाइजेशन का सेटअप रिक्वायर्ड होता है कि आप अपनी जो है सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज मिक्स स्ट्रीम करके पॉलिसी बनाएं, आपकी पॉलिसीज़ को डिसेंट्रलाइजली वो फुलफ़िल करें। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का ही होता है कि जहाँ सेंट्रलाइजेशन फेल हो जाए या प्रॉपरली ना काम कर रही हो या रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन प्रॉपर ना हो रही हो, गवर्नेंस का इशू हो, वहाँ हम डिसेंट्रलाइजेशन को लेते हैं और उसको प्रमोट करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसको एड करती है और सपोर्ट करती है।
देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस। ज़ाहिरी बात है, अगर एक कोई चीज़ उसके एडवांटेजेस है तो उसके डिमेरिट्स भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। देयर आर फ्यू disadvantages of decentralization, as it is, as we know that and we have discussed previously that कि जब आप डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में जाते हैं, आपके जो मैनेजर्स होते हैं जिनको आपने पावर्स डेलीगेट की होती हैं, जो आपके बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं, वो स्किलफुल होने चाहिए। जब उनको स्किलफुल होने के लिए ये है कि उनको टाइम टू टाइम ग्रूमिंग चाहिए, उनकी ट्रेनिंग्स हैं या इवन उनकी सैलरीज हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली पेड हैं, तो इट इज़ अ मोर कॉस्टली प्रोसेस। डिसेंट्रलाइजेशन सेटअप इज़ मोर कॉस्टली दैन सेंट्रलाइज सेटअप। ठीक है, नो स्पेशलाइजेशन इसमें नहीं होती, इसमें कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। आपकी स्पेशलाइज स्किल्स, आपकी जो है आपके मल्टी टैलेंटेड स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं और आपको बहुत सारे स्पेशलिस्ट दरकार होते हैं चीज़ों को टाइमली हैंडल करने में। तो इसमें नो यूनिफॉर्म एक्शंस हैं कि कंपनी की तो पॉलिसी सेम है, लेकिन हर जो आपका क्लस्टर है, जो इंचार्ज है, जो मुख्य सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको पॉलिसीज़ चलाने के लिए वो अपनी पॉलिसीज़ अप्लाई करते हैं। हर डिफरेंट पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं उनके एक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन में यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शंस इसलिए भी नहीं होती क्योंकि जो बंदा काम कर रहा होता है वो ही इज़ वेल अवेयर और उसकी अपनी थिंकिंग होती है, उसकी अपनी डिज़ाइनिंग होती है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चल रहा होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं सेंट्रलाइज कंपनीज या डिसेंट्रलाइज की। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे फास्ट फूड कंपनीज बहुत सारी काम कर रही हैं पाकिस्तान में। वी हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ फास्ट फूड प्रोवाइडर्स लाइक मैकडोनल्ड्स, लाइक KFC, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, नैंडोज एक्सेट्रास। कुछ जो हैं जिनके जिस तरह के मैकडोनल्ड्स हो गया, बर्गर किंग हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, इन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। रीज़न इज़ दैट कि इनकी सेंट्रलाइज्ड बाइंग है, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है, सेंट्रलाइज्ड उनकी जो है पॉलिसी मेकिंग है। इन्होंने अपनी जो पॉलिसीज़ बनाई है वो टॉप टू बॉटम वही फ्लो करेगी, उसमें नो चेंज, नो शिफ्ट, किसी एरिया के हिसाब से, किसी इकोनॉमिक या किसी कल्चर के हिसाब से उसको चेंज नहीं किया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह एक मुस्लिम वर्ल्ड में ये काम कर रहे हैं, एक नॉन मुस्लिम में तो हलाल हराम की, वो डेफिनेटली उससे वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो नहीं चला सकते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इनका हाईली सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो पॉलिसी मेकिंग है वो जो है सेंट्रल होती है, वो टॉप मैनेजमेंट करती है। इनकी बाइंग, इनकी पॉलिसी मेकिंग, इनकी ह्यूमन रिसोर्स सारी सेंट्रलाइज के थ्रू होके आ रही होती है। नेक्स्ट डिसेंट्रलाइज की एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे मुख्तलिफ होटल्स हैं, बड़े राउंड होटल्स हैं, उनकी चेन्स हैं डिफरेंट, मुख्तलिफ आप देखेंगे शहरों में। जो आप ट्रैवल करते हैं एक ज़ोन से दूसरे ज़ोन में, सिटी से टू सिटी वेरी करते हैं, तो आप देखते हैं कि चीज़ें जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं। इकोनॉमिकली शिफ्ट आता है डेमोग्राफिक फैक्टर्स की वजह से। तो जो होटल चेन्स है वो अपने मैनेजर्स, जो लोकल उनके जो आउटलेट मैनेजर्स होते हैं, उनको ऑथराइज़ कर देते हैं कि जी आप वहाँ की उस एरिया के हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करें, पॉलिसी मेकिंग करें, कस्टमर की जो ग्रीवियंसेस हैं उनको दूर करें और हमें जो है हमारी सेल्स को बूस्ट करें। पर्पज़ उनका वही होता है, विजन अचीव करना। लेकिन उन्होंने अपनी जो टॉप मैनेजमेंट है अपनी डेलीगेट करती है पावर उस एरिया के हिसाब से, ताकि इस सेगमेंट को चलाया जा सके। अब अगर हम डेमोग्राफिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो जो चीज़, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि कराची को अगर हम बेस करें और हम मुल्तान को बेस करें, तो हेल ऑफ डिफरेंस इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिटीज़। तो उस जो चीज़ उस मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची के लिए डिज़ाइन की जाएगी, डेफिनेटली वो हमारे लिए नहीं होगी। हमारी जो चीज़ होगी वो हमारे हिसाब से होगी। तो इसी एक डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत अच्छी एग्जांपल है। अगर वही पॉलिसीज़ वो यहाँ करेंगे तो फ्लॉप कर देंगे, वो चला ही नहीं सकते। तो यहाँ उन्होंने इसलिए लोकल्स को, मैनेजर्स को लोकल एरियाज़ में हायर करते हैं कि वो लोकल एरिया के बारे में उनको बताएं और अपनी पॉलिसीज़, जो कंपनी की पॉलिसीज़ है, उसको प्रमोट करें अपने तरीके से, ताकि पर्पज़ ये है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। कोका कोला ने भी इसी तरह किया। आपने पहले उनका सेंट्रलाइज सेटअप था, फिर उसको उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया जोन्स के हिसाब से। उन्होंने हर जोन में अपने अपने दिए, उन्होंने वहाँ दिए, उन्होंने जी हमारी कंपनी की पॉलिसी जो है वो ग्रोथ है, हमें मैक्सिमम सस्टेनेबिलिटी विद प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, कि हमें उनका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए, हाईली सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी ये हमें चाहिए, आप इसको अपने मुताबिक अपने रीजन्स के हिसाब से चेंज करें। तो उन्होंने फिर सेंट्रल एशिया की डिफरेंट उन्होंने की पॉलिसीज़ की, इंडिया में अलग किया, पाकिस्तान में अलग किया। तो वो भी डिसेंट्रलाइजेशन की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। अब हम इसको और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एक गवर्नमेंट बैंक सेक्टर के बैंक को ले लें जो सेंट्रलाइज होता है, एक प्राइवेट बैंक को ले लें जो हाईली आपका डिसेंट्रलाइज्ड होता है डिसीजन मेकिंग के हिसाब से। अब
जो आपका सेंट्रल बैंक है उसके अंदर पावर एंड अथॉरिटी प्लानिंग डिसीजन मेकिंग जो है वो टॉप मैनेजमेंट है, वो चेंज ही नहीं होनी। जबकि पावर अथॉरिटी विद अकाउंटेबिलिटी शुड बी क्लोज टू एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर, जिसने काम करना है, प्राइवेट जो होते हैं सेटअप। कुछ बैंक्स हमारे जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड बैंक्स भी हैं। अब डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक्स के अंदर वो सीनियर मैनेजमेंट कर रही होती है, रेस्ट विद द लोकल मार्केट। जो वो अपने पैकेजेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जैसे कार फाइनेंसिंग के हो गए या आपके डिपॉजिट्स हो गए। आप देखें प्राइवेट बैंक्स जो होते हैं वो बड़े रिलेक्टेंट होते हैं, वो ये कहते हैं कि जी जो हमारा सेंट्रल बैंक का काइबर है, जो हमारा मेन रेट है, उसके बाद हम आपसे हमारे बैंक का तो है जी 5%, लेकिन हम आपको आप अच्छे कस्टमर हम आपके लिए 3% पर जाते हैं। बेसिकली वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए स्ट्रेटजीज में फ्लेक्सिबल होते हैं। जबकि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के बैंक होते हैं उनकी पॉलिसी एक ही होती है, उनके जी यहाँ भी एक है और आप कहीं और जाएंगे वहाँ से लेंगे वो भी एक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। रिस्क भी इसी तरह वो है। एडवांटेज क्या है? हाँ, सेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज है कि उसमें स्पैन और कंट्रोल जो है वो बहुत क्लोज होता है, आप उसमें जो है कर सकते हैं, उसमें आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि उसमें थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट होता है। अब अगर हम एक ऐसी रिव्यू करें कि हम इसका डिफरेंस एक बनाना चाहें तो ये कर सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस इज़ अ हायरार्किकल डिसीजन मेकिंग, यानी उसमें वन वे प्रोसेस है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक है। ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डाउनवर्ड डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड हो रही होती है। वो सेंट्रलाइजेशन जो है ब्यूरोक्रेटिक होता है और ये डेमोक्रेटिक अप्रोच है, फ्लेक्सिबल होती है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइज के अंदर डिसीजन मेकिंग मोर ऑफन जो है एफिशिएंट होती है, उसके अंदर टाइम, जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके अंदर चूँकि साथ साथ चेंज कर रहे होते हैं, पर्सन की एबिलिटी पे भी डिपेंड करी होती है, तो इट मे बी टाइम कंज्यूमिंग और इट मे बी मोर एफिशिएंट दैन सेंट्रलाइज सेटअप। ठीक है, ये सेंट्रलाइजेशन जो है लार्ज सेटअप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइज भी होता है। बहरहाल कुछ लॉन्ग में सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सेटअप भी मौजूद हैं। एक और मेन फैक्टर इनमें डिफरेंस हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रलाइज सेटअप है वो जो है वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज होता है, रिलक्टेंट टू चेंज होता है। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आपको पॉलिसी अपेंड करना चाहते हैं, वो स्ट्राइक्स पे चले जाएंगे, दे सेड कि नहीं जी हम ये चेंज अडॉप्ट ही नहीं करते, हालांकि वो उस तरफ आना नहीं चाह रहे होते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता, जो डिसेंट्रलाइज सेटअप होते हैं वो चेंज को एग्रेसिवली लेते हैं, उसको समझते हैं कि कुछ नया मिलेगा, कुछ हमें बूम मिलेगा, तो ये इसमें डिफरेंस आता है। इट इज़ अ डिफरेंस दैट centralized organization are very resistant to change and decentralized organization are responsive to change. अब हम बात करते हैं कि जी हमारे ज़हन में सवाल आता है कि जी हमने डिसेंट्रलाइज भी पढ़ लिया, सेंट्रलाइज भी पढ़ लिया, आइडियल सिनेरियो क्या हो सकता है कि जी सारी चीज़ें सेंट्रलाइज की भी ठीक नहीं है, सारी डिसेंट्रलाइज की भी ठीक नहीं है। तो डेफिनेटली के साथ जिस तरह हम ये कहते हैं कि जी सारे इंसान एक से नहीं होते, सारी पॉलिसीज़ एक से नहीं हो सकती, सारी सेंट्रलाइज नहीं हो सकती सारी, तो जो मिक्स होता है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है कि वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर हो, ताकि उसमें चेक एंड बैलेंस भी मौजूद हो और उसके अंदर आपने पावर्स भी डेलीगेट किए हो, ताकि डे टू डे ऑपरेशन जो है वो भी सफ़र ना हो रहे हो। आपकी जो प्लानिंग, आपका बेसिकली जो विजन है उसको अचीव करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो हमेशा सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में बनानी चाहिए, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो पॉलिसीज़ को अप्लाई करते हुए, चीज़ों को लेते हुए। हाँ, आपकी मेजर फोकस वही होना चाहिए जो आपका सेंट्रलाइज सेटअप ने दिया, उसको करना कैसे है वो डिसेंट्रलाइज कर देने हो सकता है। इसमें भी यही कहता है कि जी आइडियल बैलेंस यही है कि आप मिडल लोअर मैनेजर्स जो आपके सीन ऑफ एक्शंस को देख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत स्किलफुल होने चाहिए, उनके बगैर ये नहीं हो सकता, इसका बैलेंस होना चाहिए। जो टॉप मैनेजमेंट है उसको जो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जाना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी मेकिंग करें, नए नए एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करें, और जो वर्किंग है और जो आपके मिशन है कि उन गोल्स को अचीव करने का टास्क है उसको वो डेलीगेट कर दें अपने मिडल मैनेजर्स को और लोअर मैनेजर्स को। तो ये एक आइडियल सिनेरियो होता है जिसमें आप पब्लिक और जिसमें आप सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज को मिक्स करके एक अच्छा सा जो है सम अप बना सकते हैं जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। So this is the whole overview of the decentralization and centralization and its differences concept. Hope everything is comprehensively described in this. Inshallah, next we will be discussing the vision and mission, how we can go for further. In the next we will discuss the decentralization, its types and objectives, and how it is beneficial for the working of any organization with respect aspect of its governance. Thank you.